गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारे ऑनलाइन लाइव डिक्लामेशन कंपटीशन के अंदर हमारे साथ अपने प्राचार्य प्रिंसिपल मेजर दिनेश सहारन सर जुड़ चुके हैं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारा आज का जो कंपटीशन है इसको करवाने की अनुमति दी और हमारे साथ वो यहीं पे हैं। सर अभी हमें मोटिवेट करेंगे कि इस तरह के कंपटीशन हम लगातार कराते रहें। तो सभी टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं उन स्टूडेंट्स का करूंगा जिनकी वजह से हम ये डिक्लामेशन कंपटीशन करवा ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं दोबारा से हमारे प्राचार्य, हमारे कॉलेज के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सभी का मैं दोबारा से अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर, एक मिनट आप हमारे बच्चों को कुछ मोटिवेट करें सर। थैंक यू। First of all, thank you for inviting me to motivate the students, and particularly thanks to all the chemistry department for organizing such an activity which will boost the interest of the students, particularly in the field of chemistry. Such type of activities are necessary for the overall development and in-depth knowledge of the subject, which ultimately leads or give you a path of success. And I hope you will learn a more that will make you a successful citizen in your field. So I hope you will participate actively, and you have participated actively in this online declamation contest. And such type of activity will boost your interaction with the subject. And I hope soon the college will be open and we will organize more such activities which will create interest of yours in a particular subject in which you are interested. Thank you, all of you, and best wishes. And I always suggest you to participate in such type of activities, because these activities will boost your confidence. Only bookish knowledge is not sufficient to achieve success in life. You have to participate in all such activities to gain confidence. Thank you, all of you, and best wishes. Thank you, chemistry department, and well done. Thank you, sir. थैंक यू सर। मैं प्रिंसिपल सर मेजर दिनेश सहारन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आके आप सभी बच्चों को, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनको मोटिवेट किया। साथ ही साथ हम टीचर्स को भी इससे मोटिवेशन मिलती है। सर आप अपने बातों को इसी टाइप से हमारे बीच रखते रहें, हम उनको फॉलो करते रहेंगे और सभी स्टूडेंट्स भी इन चीजों को फॉलो करें। और इसी तरह से जितनी भी हमारी प्रतियोगिताएं हम करवाएं, कंपटीशन करवाएं, आप कंटिन्यूअसली उसमें पार्टिसिपेट करते रहें। हार जीत तो कुछ नहीं होती, आपका पार्टिसिपेशन मस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू। वेल डन। सारे कमेस्ट्री डिपार्टमेंट को फॉलो करने लगे हैं। अब हम अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट है इसमें आरती, रोल नंबर 50, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स। आरती, रोल नंबर 50। मोनिका, रोल नंबर 67। Good morning, teachers. हाँ बेटा, अपना स्टार्ट करें। My name is Aarti, my roll number 50, and I am a student of BSc Chemistry Honors second year. Today in this declamation competition, my topic is applications of alcohols and phenols. Alcohols contain the hydroxyl functional group attached to the carbon atom by covalent bond. The general formula is CnH2+1 OH. For example, ethyl alcohol and methyl alcohol. Uses of alcohols are: ethyl alcohol is the major component of alcoholic drinks like beers, wine, etc. Ethanol combined with small quantity of methanol and is sold as methylated spirit with many industrial applications. Ethanol is widely used as a solvent for dissolving many organic compounds, and it is also used in the preparation and manufacturing of perfumes and cosmetics.
Methyl alcohol is used as a solvent for paints and varnishes. It is also used as an antifreeze agent in automobile radiators. Alcohols are used in medicine field also. Doctors, nurses, medical practitioners disinfect their hands in alcoholic solution before handling the patients. During surgery also, the surgical area is cleaned with alcohol and to remove the infections. Now, the phenol. Phenol, it is an aromatic compound with molecular formula C6H5OH. It is a white crystalline solid that is volatile. It requires careful handling because it can cause chemical burns. Now, the uses of phenols are, it is widely used in antiseptic and disinfectant. It is also useful precursor for synthesis of food preservatives and pharmaceuticals. Phenol has antibacterial, antifungal, and antiviral properties and can be used to destroy bacteria and fungi. It is used in the preparation of phenol formaldehyde resin, that is bakelite. That's all from my side. Thank you so much. थैंक यू बेटा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आपका जो टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल फिनोल, तो आपने उसको बहुत ही अच्छे से आपने जो डिफरेंट एप्लीकेशंस बताई हैं, आपके मिथेनॉल इथेनॉल के बारे में आपने बताया, कहाँ पर उनकी एडवांटेज होती है, डेली लाइफ के अंदर वो कौन कौन से केमिकल्स थे, कहाँ पर किसको हम यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। अब हम नेक्स्ट इन्वाइट करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट को, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। मोनिका के बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अंशुल जून। अभी जो कंपटीशन में जिस बच्चे ने बोला उसका नाम था आरती, रोल नंबर 50। ठीक है बेटा, आप अपने आप को कंफर्म कर दें। अभी जिस बच्चे का डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में जिसने अभी अपनी स्पीच दी, अपनी प्रेजेंटेशन दी, वो बच्चा था आरती, रोल नंबर 50। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है मोनिका, रोल नंबर 67। Yes. पहले हम मोनिका को इनवाइट करते हैं। हाँ जी Yes, बेटा, sir. स्टार्ट करें आप अपनी प्रेजेंटेशन। First of all, good morning to all teachers and dear friends. My name is Monica, class BSc Chemistry Honors second year. My roll number is 120-127-09-0067. My topic today is declamation competition. My topic is alcohol and phenol. अल्कोहल जो है वो फॉर्म होता है जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। अल्कोहल की हाइब्रिडाइजेशन है Sp3। अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2O। और अल्कोहल को हम यूज करते हैं मैनी थिंग्स में, जैसे कि इथेनॉल में स्प्लिट इथेनॉल को यूज किया जाता है पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर में। शुगर, कॉटन, पेपर सभी को बनाने के लिए हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यूज करते हैं। उसके बाद है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल में हम इथेनॉल, पेट्रोल, बेंजीन को मिक्स करते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट में इथेनॉल, मिथेनॉल और पायरिडीन का मिक्सचर है। उसके बाद है प्रूफ अल्कोहल। प्रूफ अल्कोहल में जो है 49.5% वेट, 57.51% वॉल्यूम के द्वारा इथेनॉल को यूज किया जाता है। इथेनॉल को बनाया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा। इथेनॉल का फर्मेंटेशन में स्टार्च और मोलासिस को यूज किया जाता है। स्टार्च को हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डाइएस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं और माल्टोज बनता है। फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से इथेनॉल और CO2 इवोल्व होती है। उसके बाद है ग्रेन्स जो है वो यूज किए जाते हैं विस्की और बियर को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रूट्स यूज किए जाते हैं वाइन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और फ्रूट्स जूस यूज किए जाते हैं ब्रांडी प्रोड्यूस करने के लिए। शुगर केन यूज किया जाता है रम को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है बियर में इथेनॉल की परसेंटेज होती है 3 to 6% और साइडर में 2 to 6%, जैसे कि विस्की में 35 to 40%। और हम साइंटिस्ट कहते हैं कि इथेनॉल जो अल्कोहल जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है ह्यूमन पर अल्कोहल का कैसे इफेक्ट होता है, यह साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है।
जैसे कि अल्कोहल को ग्लूटामेट रिसेप्टर पर के साथ अटैच किया जाता है। ग्लूटामेट जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, यह जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पर एक्ट करता है, जो कि हम न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रेन में होता है। इसकी ग्लूटामेट की जब प्रेजेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो न्यूरॉन फायरिंग की भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, इसलिए हम इसको ग्लूटामेट को ब्रेन फूड्स भी कहते हैं। इसके बाद है अल्कोहल को जो है यूज किया जाता है ड्रिंकिंग में, जैसे कि ग्रेन अल्कोहल्स को, फ्यूज ऑयल्स को, रबिंग अल्कोहल को, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट इज फिनोल। फिनोल जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनोल का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6O। और फिनोल में जब हम एरोमेटिक सब्सटेंस से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा देते हैं तो उससे हम फिनोल बनता है। फिनोल जो है वो यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की तरह। फिनोल को हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम लिविंग बॉडी पर फिनोल को यूज करते हैं तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। फिनोल को यूज किया जाता है 1% फिनोल की अमाउंट होगी तो फिनोल को यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग की बॉडी पर यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छा बोला। अपनी ओरिजिनल जो भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरीके से आप बोल सकते थे, आपने वो बोलने की पूरी अच्छे से कोशिश की। आपने यानी आपने जो बातें बताई उससे सभी की नॉलेज भी अपग्रेड होगी। जो हमारा डिक्लेमेशन है इसका एक फायदा ये भी है क्योंकि हर बच्चा, हर पार्टिसिपेंट अपने अलग अलग विचार रखेगा, अपने अपने अलग अलग थॉट्स को लेके आएगा, जिससे हमारी नॉलेज भी अपग्रेडेशन होती है। तो थैंक यू बेटा, आपकी बहुत ही अच्छी थी प्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट को, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट है अंशुल जून। अंशुल जून, रोल नंबर 71, BSc सेकंड केमिस्ट्री ऑनर्स। यस सर। हाँ बेटा, स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। Good evening, everybody. Myself Anshul June, BSc second year chemistry honors, and today I'm going to speak on the topic the applications of alcohol and phenols. As we all know that the alcohols are the species in which the hydrogen atom of the aliphatic hydrocarbon are replaced by the hydroxy group. That is, examples are ethanol and methanol, etc. And similarly, phenols are the hydrocarbons in which the H atom is replaced from the benzene ring by the hydroxy group. So first of all, we'll look at the applications of alcohol. One of the most important application in the recent times is sanitizers, as we all know that. Nearly 60 to 95% of alcohol-based sanitizers are available right now. And if we'll see, methanol is as an example of alcohol which is used as a fuel because it is very high calorific value, and it is also used in the perfume industries. Ethanol is used as a fuel in spirit lamps. It is also important ingredient in the beverages like beer, whiskey, etc. It is also the starting material of many material for the preparation of chloroform, iodoform, etc. It is also used as an antiseptic agent. Ethylene glycol is a type of polyhydric alcohol which is used in the manufacturing of well-known synthetic fiber that is called as Dacron. Glycerol is used in the preservation for the fruits due to their hygroscopic nature. It is also used in the formation of dynamite. All the alcohols in general are also anti-freezer in the automobile radiators. The applications of phenols are phenol, it is used as a disinfectant and antiseptic since the ancient times. It is also proven to be effective
antibacterial, antimicrobial agent. Many studies have been conducted to find the mechanism behind the reactions. Some studies have also hypothesized that they hindered the protein and the RNA mechanism of the microorganism and thereby causing the death of that. But some studies have shown that it damaged the cytoplasmic membranes of the microorganisms. Phenol was also one of the ingredients that was used by Hitler in the Second World War to executing the Nazi community due to its toxic effect when it is used in the concentrated volumes. Phenol is also used as a starting material for chemicals such as pyric acid, drugs, explosive materials, plastic polymers, etc. It is also used as a starting material for azo dyes that is used in the coloring industries. It is sometimes also used in the hospitals to sterilize the equipment in the medical room. Phenol in a very dilute concentration can also relatively lower the sore throat. So we can see that alcohol and phenols are widely used in different kind of industries for various purposes. I hereby want to say thank you to everyone for listening to my speech. Thank you so much. Thank you, Beta. You gave a very wonderful explanation about the different applications of alcohol, phenol. आपने सारी बातें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की, सब कुछ आपने बहुत ही बेटर तरीके से प्रेजेंट किया और स्टूडेंटों ने भी अच्छे से किया था, लेकिन आपने भी बहुत ही अच्छे से किया, इसलिए सभी बच्चे मोटिवेट होंगे आपकी इस यानी जो प्रेजेंटेशन है उससे, और वो भी और भी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे जैसे आपने देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है और बच्चे उससे लगातार मोटिवेट होते रहें, जो भी हेजिटेशन उनके अंदर होती है बोलने की, ताकि वो उनके अंदर ना रहे। सो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है ज्योति, रोल नंबर 76। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज, आप अपनी वीडियो ऑन करके आ जाएं बेटा। सर वीडियो ऑन है। हाँ बेटा स्टार्ट करो। हाँ जी बेटा आप स्टार्ट करें। First of all, good morning to everyone. Myself Jyoti from BSc Chemistry Honors second year. Today there is a declaration competition and my topic is application of alcohol and phenol. The compound obtained by replacing one hydrogen atom from aliphatic hydrocarbon by hydroxyl group is called alcohol, whereas those obtained by the replacing of one hydrogen from aromatic hydrocarbon by the hydroxyl group are called phenols. The alcohol and phenol functional group are also found in natural substances like glucose, glycerol, cholesterol, etc. Alcohol and phenols are both acidic in nature. Phenol is more acidic than alcohol due to the dispersal of negative charge by resonance. Alcohol and phenol have many applications and importance in our day-to-day life. Alcohol is the alcohol. Ethanol is the alcohol found in the alcoholic drink such as wine and beer. Alcohol is also used as a disinfectant and kill germs. Alcohol more than the 60% concentration is used to kill germs and microbes. Methanol is used as solvent in ink and dyes. Ethanol is mixed with petrol to use as a fuel. Phenols are also used as disinfectant and antiseptic. Phenols are also used for the manufacture of dyes, bakelite, etc. Thank you. थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। आपने बताया कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं अल्कोहल फिनोल्स की। सो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अब हमारे सुकन्या, रोल नंबर 82, बीएससी सेकंड केमिस्ट्री ऑनर्स। Good morning, teacher. First of all, thank you for giving me opportunity of introducing myself. My name is Sukanya Bhanwala.
I am a student of BSc Chemistry Honor second year from Pandit Nekiram Government College, Haryana. Topic is application of alcohol and phenol. Alcohol and phenols are classes of organic compound that incorporate the CO bond. Alcohol and phenols are acidic in nature due to presence of hydrogen atom in alcohol and phenol. Phenol are acidic in nature than alcohol due to a resonance. Methanol is used as a solvent for ink. Methanol formula is CS3OH. Ethanol is the alcohol for alcoholic drink. Example, beer, wine. Or ethanol formula is CS3CS2OH. Phenol are aromatic compound. Phenol are mainly used in medicine purpose and antiseptic agent. Thank you so much. थैंक यू बेटा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। आपने बहुत ही अच्छे से अपना स्टार्ट लिया। जैसे किसी भी दौड़ के अंदर, रेस के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो पहले क्या बोला जाता है, एंड कैसे किया जाता है, आपने बिल्कुल वैसे ही पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं यशिका, रोल नंबर 96, BSc सेकंड केमिस्ट्री ऑनर्स। अपने आप को अनम्यूट करें बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट करें। A very good morning to everyone. I am Yashika and I am currently pursuing second year of BSc Chemistry Honors, and I am going to deliver presentation on application of NMR spectroscopy. NMR spectroscopy, where NMR stands for nuclear magnetic resonance. It can be defined as an indispensable tool which applies a magnetic field to an atomic nucleus. It is the use of NMR phenomena to study physical, chemical, and biological properties of matter. NMR spectroscopy has been used for bacterial identification and for metabolic pathway studies. It determines the chemical properties of functional groups in biomacromolecules. Also, it determines the biomacromolecules in aqueous solutions under near physiological conditions. NMR spectroscopy is used to determine structure of proteins, amino acids, carotenoids, organic acids, and lipid fractions. Chemists use NMR to determine molecular identity and structure. Also, it is used to determine relative location of atoms within a molecule. It is the most helpful spectroscopic technique in organic chemistry, depends on very strong magnetic fields. It is also used to map carbon-hydrogen framework of molecules. NMR is extensively used in medicine in form of magnetic resonance imaging. NMR is extensively used in medicine in form of magnetic resonance imaging, and that brings us to the end. Thank you so much for your interest and attention. थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छा बोला NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, उसकी एप्लीकेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे वो आप उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपने हमारी नॉलेज को अपग्रेड किया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इशिका, रोल नंबर 88। इशिका, रोल नंबर 88, BSc सेकंड केमिस्ट्री ऑनर्स। Good morning, respected teachers and my dear friends. Hope all of you are good. Today, I'm going to speak about applications of alcohols and phenols. Myself, Ishika, roll number 88 from BSc Chemistry Honors second year. Alcohols and phenols are classes of organic compounds that incorporate carbon-oxygen bond. Alcohols can undergo wide variety of reactions, and because of this reactivity and because they can be prepared in number of different ways, alcohols occupy an important position in organic chemistry. The alcohol and phenol functional group are found in many important naturally occurring molecules like glucose, glycerol, cholesterol, etc. They have many applications in several domestic and industrial processes. In terms of usage, alcohol is the main ingredient in alcoholic beverages. They are also used in ink industry, pharma industry, and many other industries.
Phenols are mainly used in medicinal products as antiseptic agents. Alcohols and phenols are basic compounds for formation of detergents and perfumes. Some of the uses of alcohols. Ethanol combined with small quantity of methanol is sold as a methylated spirit with many industrial applications. Ethanol combustion produces energy, carbon dioxide, and water, and can be used by itself or with petrol as a fuel. Methanol is combined with petrol to improve combustion. Methanol serves as an industrial feedstock for the preparation of other compounds like aldehydes and acids. Uses of phenols. Phenol is used as precursor for the synthesis of food preservative, resins, and polymers. Bisphenol A is a compound of polycarbonated plastic. Thank you. Hope you all liked it. Have a nice day. Thank you, Beta, for a wonderful presentation with a good start, good ending, good matter in your presentation. Thank you very much. Next participant is Mansi, roll number 125, BSc third year chemistry honors. Sir, good morning, respected all teachers and all my dear friends. Today, I, Mansi, roll number 125 from BSc Chemistry Honors third year, going to explain NMR spectroscopy in brief and as well as its applications also. So, NMR spectroscopy, mainly, what does it mean here? What is NMR? N here stands for the nucleus, M stands for the uniform magnetic field, and R stands for the resonance. And nucleus, if I tell you what is nucleus here, nucleus हमें यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है तो हमें एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है. स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पिन की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, नॉन जीरो स्पिन होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1/2 एंड ऑल कुछ भी चीज. और उसके बाद हमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो जितनी भी हमारी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती हैं वो आपकी किसी भी स्टेट के अंदर पर्टिकुलर ऐसे ही रैंडम तरीके से रहती है. जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो वो एक एनर्जी स्टेट काफी सारी एनर्जी स्टेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है. और वो स्प्लिट होना डिपेंड करता है कि एक फॉर्मूला होता है 2l+1, उसके अंदर l हमारी स्पिन होती है, किस हम एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसकी l हमारी स्पिन की वैल्यू पुट करी जाती है और उसके बेसिस पे हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है. और जैसे कि हम यहाँ पे स्पेशली h के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं. और h की स्पिन हाफ होती है तो 2 एनर्जी स्टेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है. थर्ड हमारी मेन आ जाती है रेजोनेंस. जो वर्ड है रेजोनेंस का मतलब होता है जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब एक्साइट हो रही हैं तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं. और इस प्रोसेस के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है जो जहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं और एक्साइट होते हैं हमारी न्यूक्लियाई. तो अगर हम इन तीन चीजों को कंक्लूड करके NMR का प्रिंसिपल बताए तो वो ये कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ स्पिन न्यूक्लियाई. जो हमारी एक्टिव स्पिन न्यूक्लियाई हम लेके चलते हैं उनकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन जो कि हम बाहर से डालते हैं. और पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे जो बाहर से रेडिएशन आ रही हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स उनके बीच में और जो एनर्जी गैप हमारी स्टेट्स आ रही है उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होनी बहुत जरूरी है. तो ये हमारा बेसिक है NMR का. अब प्रिंसिपल्स पे आते हैं हमारी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं NMR की. अगर इसके अंदर हमारा एक मेन होता है कि इसके अंदर हम सिग्नल्स की हेल्प से पता लगाते हैं जो भी हम इसकी एप्लीकेशंस बताई जाएंगी उसका मैं आपको बेसिक देती हूँ. एक ग्राफ होता है जैसे हम यहाँ पे TMS स्टैंडर्ड सोल्यूशन की उसकी पीक मान के चलते हैं जो उसका सिग्नल आता है और फिर यहाँ पे इंटेंसिटी y एक्सिस पे और नीचे मैग्नेटिक फील्ड और डेल की वैल्यू हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं. जो हमारा TMS होता है उसके लिए डेल की वैल्यू 0 होती है और उस तरफ डेल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं लेफ्ट साइड. तो इसमें सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशंस पे आती हूँ तो सबसे पहले अगर मेरे को 2 कंपाउंड दिए हैं उसके अंदर हमें ये पता लगाना हो कि कौन सा हैलोजन इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैसे हेल्प लेते हैं. अगर मेरे पास 2 कंपाउंड है, एक फ्लोरीन वाला एक क्लोरीन वाला, तो हमें पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो उसके पास जो भी H होंगे उनको वो बहुत ज्यादा डीशिल्डेड कर देगा, उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा. तो अगर डीशिल्डेड हो जाता है तो उसमें हमें पॉइंट्स ये होते हैं कि जो हमारी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो अपने आप में लो हो जाती है और डेल की वैल्यू बढ़ जाती है. तो जब हम स्पेक्ट्रा देखते
देखते हैं तो डेल की वैल्यू हमारी टीएमएस से काफी दूर, लाइक इस तरफ यहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज, अगर हमारे दूसरे कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि शील्डेड तो, लेकिन डीशील्डिंग तो होगी क्लोरीन की वजह से, लेकिन वो बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो हमें एक सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन है या क्लोरीन है, कौन सा हैलोजन है। दूसरी एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें कोई भी कंपाउंड रखा है उसके अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, तो उसके लिए मैं एक ROH जनरल फॉर्मूला एक अल्कोहल का मान के चलती हूँ। अगर मेरे पास वेपर फेज में वो प्रेजेंट है, ROH मेरे पास है, तो उसके अंदर क्या होगी कि जो H की जो डीशेडिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, सिर्फ एक ऑक्सीजन की वजह से होगी। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मान लिया मेरे पास 2 ROH के मॉलिक्यूल्स है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 ऑक्सीजन की वजह से कम होगी, तो इसका मतलब डीशेडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो डेल की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। डेल की वैल्यू बढ़ेगी तो हम, हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर हमारी पीक लाइट थोड़ी दूर मिलेगी टीएमएस से, और जो हमारा वेपर फेज के अंदर फ्री था, डीशेडिंग तो उसमें भी हुई थी लेकिन कम थी, तो हमारी डेल की वैल्यू थोड़ी सी हमारे टीएमएस के पास मिल जाएगी। तो दोनों सिग्नल्स हुए, सिग्नल से हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। फर्दर अगर हमें ये पता लगाना हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर या इंटरमोलिक्यूल। अब जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की होती है, विद इन मॉलिक्यूल। तो इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगी। डेल की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, डेल हमारी कांस्टेंट रहेगी। उसके अलावा जब अगर हम ये देखना हो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं, अगर हम टेम्परेचर की टर्म्स में अगर हम जाते हैं, अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आए हुए हैं, तो मतलब मैं एग्जांपल ले रही हूँ नाइट्रोफेनोल का, पैरानाइट्रोफेनोल में क्या होता है कि नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स और OH वाले, मैंने इसका बैक वाले साइड OH ले लिया, नाइट्रोजन का ले लिया है, जो उसमें H की डीशेडिंग होती है 2 ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। इसका मतलब हमारी डेल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरे तरफ अगर हम टेम्परेचर ज्यादा ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो डेल की वैल्यू कम रहेगी एज कम्पेयर टू उसके जो हमने ऊपर ले रखा था। तो इसी तरीके से सिग्नल्स, इसमें भी हम सिग्नल की हेल्प से पता लगा सकते हैं। क्लास एप्लीकेशन हमारी आ जाती है कि आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें ये पता लगाना है कि प्रोटोन एक्सचेंज प्रोसेस चली है या नहीं है। तो इसके एग्जांपल में साइक्लोहेक्सेन की प्रोसेस साइक्लोहेक्सेन से देना चाहूंगी। साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमारी एक चेयर शेप होती है, चेयर शेप में हमारा ये होता है कि 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं, 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी प्रोटोन एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ज्यादा चल जाती है, तो हमें पता नहीं चलता कि भाई हमारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कौन से और एक्सियल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, मिक्स हो जाता है, तो सिग्नल हमें 1 मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो सिग्नल हमें 2 मिलते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की वजह से भी और एक्सियल हाइड्रोजन की वजह से भी। तो ऐसे सिग्नल्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि प्रोटोन एक्सचेंज प्रोसेस या चली या नहीं। थैंक यू सर, आई हैव डन। थैंक यू बेटा। आपने हम सभी को जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो हम थोड़ी भूल गए थे, आपने हम सभी को स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीजें दोबारा से याद दिला दी हैं। सो थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। हम सभी को भी थोड़ी थोड़ी NMR आ जाएगी, आपने अच्छे से हमें पढ़ाया। सो थैंक यू बेटा। अब हमारे इसके बाद ये लास्ट पार्टिसिपेंट लेंगे हम हमारी इस मीटिंग का, और जैसे ही अब हमारी ये मीटिंग एंड हो जाए, मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी टीचर्स को भी, वो दोबारा से जुड़ जाएंगे। हमारा ये मीटिंग टाइम है वो एंड हो जाएगा, ये लास्ट पार्टिसिपेंट रहेगा हमारा। बेटा आप अपने टाइम को फिक्स रख के चलना, 3 to 4 मिनट्स के बीच में एंड कर देना, नहीं तो आपकी प्रेजेंटेशन बीच में रह जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है जितिन, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग, थर्ड ईयर केमिस्ट्री। यस सर। हाँ बेटा, yes, good morning to all of you. Myself Jitin from BSc Chemistry Honors final year. Today topic is NMR spectroscopy. In NMR spectroscopy में N stand for nucleus, M stand for uniform magnetic field, R stand for resonance. Resonance the process in which ऐसी प्रक्रिया जिसमें ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, where there is a correspondence between radio frequency radiation of incoming radio frequency signal and that of the medium in the presence of applied magnetic field. Spin active nucleus क्या होता है? Spin active nucleus, the nucleus in which having non-zero spin is called spin active nucleus. अब हम इस पे प्रिंसिपल पर चलते हैं NMR के। NMR spectroscopy principle, it involves the transition of spin active nucleus from ground state to excited state by absorption of radio frequency radiation, where there is a correspondence between radio frequency radiation of incoming RF signal and that of the medium in the presence of applied magnetic field. Now we discuss the application of NMR spectroscopy. First we discuss detection of hydrogen bonding.
In hydrogen bonding, the hydrogen bonding involve electron cloud transfer from H atom to neutral electronegative atom, जिसके कारण desilting of H atom take place. So H atom will resonate at lower value of applied magnetic field. It means del value higher. For example, fluoromethane, chloromethane. In fluoromethane is more electronegative than chloromethane. So desilted in case of fluorine more than chloromethane. In type of hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding or intramolecular hydrogen bonding. In case of intermolecular hydrogen bonding, with dilution or increased temperature increase करने से extent of hydrogen bonding in intermolecular hydrogen bonding में decrease हो जाएगी, जिससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मोर हो जाएगी H atom के अराउंड. So shielded of H atom take place. तो the H atom will resonate at a high value of applied magnetic fields, means del value low, del की value low हो जाएगी. Second, intramolecular hydrogen bonding. In case of intramolecular hydrogen with dilution or temperature, there is no effect on the value of applied on the value of applied magnetic field remains same. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी. अपनी लय के अंदर आप बोले. थैंक यू. अब सभी स्टूडेंट से, सभी टीचर से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लें. अब हमारी ये मीटिंग एंड होगी, आप सभी को दोबारा से ज्वाइन कर लें. थैंक यू ऑल.